Hello everyone, welcome back to Excel Learning. This is your digital learning platform where we post English chapters explanation videos, and I am your Abhishek sir. Today I have brought a very fascinating poem for class 9 ICSE students. Yes, I have been getting a lot of requests to upload a video on this chapter, and I believe you know the name of the chapter is A Work of Artifice, written by March Piercy. So without wasting any more time, let's get into the chapter. But before starting, if you have not subscribed to the channel, please do subscribe and don't forget to hit the bell icon so that you never miss a single update. So take book and take pencil so that you can mark down all the keywords, because you know that keywords are very necessary in terms of scoring more, right? So take a highlighter if you have, so that you can mark down all the keywords, and take a pencil also so that you can jot down, you can scribble down all the points that I am going to tell you in this particular video. So चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो. Okay, so the name of the poem is A Work of Artifice, written by March Piercy. So this poem is actually about a bonsai tree. This is a very fascinating poem, and though the poem is very short, but the deepest meaning or a deepest thought is lying behind the easy words. You need to keep it in your mind. So this poem is about a bonsai tree. What is bonsai? Bonsai, it is a globally popular Japanese gardening technique which involves miniaturing of plants so that we can keep the plant in our bedroom, and so that the plant can be put in a small pot. So that is called bonsai tree. अब bonsai tree को यहाँ से bonsai tree का जो life है उसके साथ poet ने connect किया है life of women. Yes, बच्चों, with the bonsai tree the poet has connected the life of women, which is very and very much important. और एक जो पॉइंट है अ वर्क ऑफ आर्टिफिस, इस जो टाइटल है द वर्क ऑफ आर्टिफिस, इससे लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो के लास्ट में. फिलहाल जो है अब हम लोग पोएम को समझते हैं. देखो, एक बात तो मानना होगा कि पहले का टाइम था जब वुमेन को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था. वुमेन वेर कंसिडर्ड टू स्टे in home, right? Women were considered to understand all the rules and regulations, all the terms and conditions set by the society. Even they were dominated by the male society or the male members of the family. ये समझना होगा कि मार्च पियर्सी ने जब ये पोएम लिखा था तब का सोसाइटी क्या था, अब का सोसाइटी क्या है. हालांकि अभी जो है वुमेन को फ्रीडम दिया जाता है, या फिर वुमेन कैन डू एनीथिंग, दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर, they are free to move anywhere, they are free to have their मनपसंद job, and they are free to lead their lives according to their choice. This is the scenario of today's society. But once upon a time, there was a situation when women were not given their basic or fundamental right, that is freedom. They could not speak up properly, they could not, that means not they could not speak up properly, ये actually गलत होगा. उन लोगों को बात करने का अधिकार नहीं दिया जाता था. Okay, they were not given the chance or they were not given the freedom to have their job or to lead their life according to their will or according to their choice. So simply women were considered, or women were enforced to understand all the norms, all the rules and regulations, all the terms and conditions of the society. They supposed to be dominated by the male members of the family. तो यहाँ पे जो है मानो कि एक युद्ध चल रहा है मेल और फीमेल में. ओके, इस तरह से हम लोग देखेंगे. और इस पोएम का मतलब दो साइड है. दिस पोएम हैज टू साइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉन्साई ट्री साइड. इसे जो आउटर अपीयरेंस में हम लोग देखेंगे बॉन्साई ट्री को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, और उस बॉन्साई ट्री के पीछे लड़कियों का जो जीवन है, वुमेन का जो जीवन है, उसे भी दर्शाया गया है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द पोएम फ्रॉम टू एस्पेक्ट्स. आई होप
it is clear. Okay, we have to understand the poem from two aspects. First of all, from the outer appearance of the bonsai tree, कि bonsai tree कैसे है, कैसा है, या फिर उसके साथ कैसे बिहेव किया जा रहा है, और उसके साथ हम लोग को ये देखना होगा कि जब ये पोएम लिखा गया है तब what was the situation or what was the state of women at that particular point of time. So दो aspects से जो है इस पोएम को डिस्क्राइब करना होगा या फिर समझना होगा. ओके, अच्छा, एक पॉइंट लिख लो कि ये जो पोएम है ये फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1999 कलेक्शन में. ओके, द आर्ट ऑफ ब्लेसिंग द डे, इसमें इस पोएम को जो है पहले पब्लिश किया गया था. ओके, आर्टिफिस जो वर्ड है इसका मतलब क्या है. मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो या फिर कोई भी चैप्टर पढ़ो, पहले चैप्टर का जो नाम है उसे समझो. अगर चैप्टर का नाम तुम्हें समझ में आ गया तो मान लो कि 50% जो चैप्टर है वहीं पे डन, वहीं पे खत्म. यस, सो एट फर्स्ट गेट द प्रॉपर मीनिंग और अ क्लियर आइडिया ऑफ द नेम ऑफ द चैप्टर. Okay, so the term has been used here, artifice. The poet could easily word the term art, but why the poet has used the term artifice? So what is the meaning of artifice? Artifice का मतलब है fancy work और क्लेवरनेस और क्लेवरली ट्रिक्ड हम लोग बोल सकते हैं. ओके, प्रोफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, लेकिन इस पोएम के अनुसार क्लेवरली ट्रिक्ड ये जो टर्म है, प्लीज नोट इट डाउन, क्लेवरली ट्रिक्ड ये जो टर्म है, दिस इज द एप्रोप्रिएट टर्म टू बी यूज्ड फॉर दिस पोएम. ओके, तो आर्टिफिस वर्ड को हम लोग ना अब चलो थोड़ा और गहराई से देखते हैं, थोड़ा और गहराई से सोचते हैं कि द पोएट. अब देखो, मैंने पहले ही कहा कि बॉन्साई ट्री जो है, बॉन्साई जो है, व्हाट इज इट? इज इट अ जापानीज टेक्निक ऑफ गार्डनिंग? आई रिपीट, इट इज अ popularly known, okay, or Japanese technique of gardening. That means it is also a form of art, right? अगर ये एक टेक्निक है गार्डनिंग का, अगर एक टेक्निक है बॉन्साई, इट मीन्स इट इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम दैट एस्पेक्ट द पोएट कुड नेम द टाइटल अ वर्क ऑफ आर्ट. But no, the poet has used the term artifice. आर्ट की जगह पोएट ने आर्टिफिस यूज किया है. क्यों, ये पहले समझना होगा. अगर ये समझ जाओगे तो आधा जो चैप्टर है यहीं पे डन. सो द पोएट कुड इजीली नेम द चैप्टर अ वर्क ऑफ आर्ट, बट इंस्टेड she is using or she has used a work of artifice. Why? Because artifice means cleverly tricked. आई रिपीट, क्लेवरली ट्रिक्ड. यानी कि इस पोएम में तो आर्टिफिस जो वर्ड यूज किया गया है, इससे पहले ही हम लोग को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज वेरी क्लियर दैट समथिंग डिसेप्टिव, crafty and cunning is there in this poem, right? Something deceptive, crafty and cunning, ये तीन जो वर्ड है इसे भी मार्क कर लो. आई रिपीट, डिसेप्टिव, crafty and cunning. And who is doing this kind of activities? मेल सोसाइटी. यानी कि मेल्स जो है एक फैमिली का, वो लोग बहुत ही कनिंगली और बहुत ही क्लेवरली दे आर डोमिनेटिंग वुमेन. क्लियर? सो द मेल सोसाइटी इज डोमिनेटिंग वुमेन और फीमेल्स वेरी cunningly or very trickily or very cleverly. That is the reason the name of the poem has been kept a work of artifice. So I hope ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया. अगर अभी भी कंसेप्ट नहीं है तो पीछे जाओ, वीडियो को पॉज करके थोड़ा करके सुनो. ओके, it is very much necessary. Now I am getting into the poem with line by line explanation. देखो, और एक बार बता दूं, पहले भी मैंने 2-3 बार बता दिया, और एक बार बता लो कि इस पोएम को जो हम लोग को दो एस्पेक्ट से देखना है. एक बॉन्साई ट्री के एस्पेक्ट से, यानी कि आउटर अपीयरेंस के एस्पेक्ट से, और सेकंड जो है क्या है, द लाइफ ऑफ द women, how bonsai tree has been connected with the life of the woman, or we can say how the life of the women has been represented through bonsai. Okay, देखो, the bonsai tree in the attractive pot
पॉट को सर्कल करो, मैं बता रहा हूं। द बॉन्साई ट्री इन द अट्रैक्टिव पॉट could have grown 80 feet tall on the hill side of a mountain till split by lightning। तो देखो पहला जो 5 लाइन है उसमें हम लोग को कोई राइमिंग वर्ड नहीं मिला है कि नहीं। अब ये भी क्यों है आप लोगों को सोचना होगा कि देखो राइमिंग होता है ना आप लोगों के साथ भी, मान लो किसी दोस्त के साथ आपका झगड़ा हुआ है तो हम लोग कैसे मैसेज टाइप करते हैं, हाँ तुमने मुझे ऐसा कहा, सेंड, आई कुड नॉट एक्सपेक्ट, सेंड, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, सेंड। तो हम लोग एक एक करके सेंड करते हैं, है कि नहीं, क्योंकि दिमाग में तब जो आते हैं हम लोग वही लिखते हैं। सो यहाँ पे भी कोई भी राइमिंग वर्ड यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि दिस इज द भड़ास ऑफ द पोएट्स हार्ट दैट इज कमिंग आउट राइट नाउ, दिस इज द एंगर और दिस इज द ग्रीफ ऑफ द पोएट्स हार्ट दैट इज कमिंग आउट राइटली। ओके, सो क्या कहा जा रहा है यहां पे, द बॉन्साई ट्री इन द अट्रैक्टिव पॉट। अ पॉट, हियर द टर्म पॉट इंडिकेट्स स्पेस, लिमिटेड स्पेस और डोमेस्टिक फियर। द पॉट इंडिकेट्स लिमिटेड स्पेस और डोमेस्टिक फियर, मार्क करो। सो द बॉन्साई ट्री इन द अट्रैक्टिव पॉट कुड हैव ग्रोन 80 फीट टॉल, यानी कि उस पॉट के अंदर, एक छोटा सा पॉट के अंदर जो बॉन्साई ट्री है वो बढ़ सकता था कितना लंबा, 80 फीट टॉल। कहां, on the side of a mountain, that means on the side of the mountain, that means अगर वो बॉन्साई ट्री जो हमने हमारे घर पे रखा है एक छोटा सा पॉट में, अगर वो बॉन्साई ट्री उस पॉट में नहीं होके, अगर वो बॉन्साई ट्री अगर कहाँ रहता, एक माउंटेन में रहता, so it could have been grown 80 feet tall, 80 फीट टॉल वो हो सकता था। टिल स्प्लिट बाय लाइटनिंग, जब तक ना किसी लाइटनिंग उस पेड़ को खत्म करता। अब और डिटेल में जाते हैं, देखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो 4 लाइन है, द बॉन्साई ट्री इन द अट्रैक्टिव पॉट कुड हैव ग्रोन 80 फीट टॉल ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन। सो दिस 4 लाइन्स इंडिकेट द पोटेंशियलिटी ऑफ द ट्री, राइट, इट शोज द पोटेंशियलिटी ऑफ द ट्री, कि वो जो ट्री है, वो जो बॉन्साई ट्री है जिसे हमने अपने घर में रखा है एक छोटा सा पॉट में, अगर वो कहाँ रहता, अगर वो माउंटेन में रहता तो वो 80 फीट टॉल वो बढ़ सकता था। दैट मीन्स द माउंटेन और द हील ऑफ द माउंटेन इज द एक्चुअल लोकेशन ऑफ बॉन्साई ट्री, राइट। दैट मीन्स आवर हाउस इज नॉट द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द बॉन्साई ट्री। बॉन्साई ट्री का एक्चुअल जो लोकेशन है वो कहां है, नेचर में, यानी कि ऑन द टॉप ऑफ द हिल। टिल स्प्लिट बाय लाइटनिंग, सो इट शोज दैट द डेस्टिनी और डेस्टिनी कैन बी एक्सेप्टेड, इट शोज द डेस्टिनी कि यही उनके भाग्य में था। किसके भाग्य में, बॉन्साई ट्री के भाग्य में, कि अगर वो बॉन्साई ट्री हिल टॉप में रहता तो वो 80 फीट, इट कुड हैव बीन ग्रोन 80 फीट टिल स्प्लिट बाय द लाइटनिंग, जब तक वो लाइटनिंग उसे खत्म नहीं करता। ओके, अब इस 5 लाइन को अगर वुमेन के लाइफ के साथ हम लोग कनेक्ट करते तो कैसे करेंगे हम लोग, कि एक जो मान लो कि एक कोई लड़की है या फिर एक फीमेल है जो अभी संसार में है, वो सबके लिए खाना बना रही है या फिर अपना बच्चे जो है उनको संभाल रही है, पूरा घर को संभाल रही है, लेकिन ये उनका काम नहीं है। अगर मान लो कि उस लड़की को या फिर उस औरत को या फिर उस फीमेल को या फिर उस वुमेन को इच्छा था कि मैं पायलट बनूंगी, तो अगर वो उसको वो चांस दिया जाता तो वो एक बहुत ही फेमस या फिर बहुत ही अच्छा लाइफ जो है वो लीड कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर पा रही है। अगर उस दौरान उसे कुछ हो भी जाता, सो इट इज एक्सेप्टेबल, व्हाई, बिकॉज इट इज हर डेस्टिनी, और उस लड़की ने खुद चुना है कि मैं पायलट बनना चाहती हूं, तो मैं पायलट बनूंगी। तो उस दौरान अगर कुछ उसे हो जाता है, सो इट इज एक्सेप्टेबल, राइट। लेकिन वो नहीं कर पाई, उसे कहां लाके छोड़ दिया गया, शी इज लेफ्ट इन दिस संसार, जहां पे उनको सबके लिए खाना बनाना पड़ रहा है, जहां पे उसे एक लिमिटेड स्पेस दे दिया गया कि तुम इसी के अंदर रहोगे, तुम इसी 4 दीवारी के अंदर रहोगी, यू डोंट हैव द राइट टू स्पीक अप प्रॉपरली, you don't have the right to go out of the house, you don't have the right to lead your life as per your choice or as per your will clearly। so bonsai tree के साथ women का ये connectivity, I hope it is clear।
सो और एक बार पहला जो चार लाइन है, इट शोज दिस लाइंस शो द और सेलिब्रेट्स द पोटेंशियलिटी ऑफ द ट्री, एंड द फिफ्थ लाइन टिल split by lightning, it shows the destiny of the bonsai tree. And what is the location of the bonsai tree? That is on the top of the mountain or hill, and pot refers to indicates the limited space or domestic fare. Next, but a gardener, see, the sentence starts with a conjunction. But a gardener carefully pruned it. The term pruned means to cut. ओके, एंड केयरफुली बोल रहा है कि लेकिन अब वो क्या दिखा जाए, ये हम लोग देख पा रहे कि वो बॉन्साई ट्री जो है, एक गार्डनर आके उसे ना काट रहा है धीरे धीरे, उसका ब्रांचेस जो है वो छोटा कर रहा है केयरफुली. कैसे केयरफुली pruned it? So it shows that the importance of the idea of कटिंग द ब्रांचेस. यानी कि एक जो गार्डनर है, वो गार्डनर आके वो जो ब्रांचेस है उसे थोड़ा थोड़ा करके काट रहा है, और केयरफुली काट रहा है. दैट मीन्स द गार्डनर इज वेरी केयरफुल अबाउट द bonsai tree. It is 9 inches high. Every day as he whittles back the branches, the gardener croons. अब देखो कैसे यहाँ पे समझाया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है पोएट ने ही यूज किया है. इट शोज इट इंडिकेट्स द जेंडर. ओके, सो इट इज 9 इंचेस हाई. यानी कि वो जो बॉन्साई ट्री है, अगर वो हिल में रहता तो वो 80 फीट वो लंबा हो सकता था, जब तक ना उसे किसी लाइटनिंग ने उसे मार दिया हो. लेकिन अभी क्या है, एक गार्डनर ना आके धीरे धीरे बहुत ही केयरफुली उस उसका ब्रांच को या फिर मतलब जो बॉन्साई ट्री उसका शाखा को वो बहुत केयरफुली वो काट रहा है. एंड राइट नाउ द बॉन्साई ट्री इज 9 इंचेस हाई. कहां 80 फीट टॉल, कहां 9 इंचेस हाई. ओके, every day as he whittles back the branches, the gardener croons. Every day as he indicates the gender or male society, whittles back the branches. Whittles one is to reduce the size of something. Okay, the gardener croons. को भी सर्कल करो. It indicates the happy state of mind of the gardener. यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हर दिन जब गार्डनर आता है और उसे काटता है, उस पेड़ को काटता है, he chants, he sings, he croons. Okay, he hums. That means the gardener is very happy. See, I am cutting the tree. Okay, now the tree is looking very beautiful. But the gardener could not actually realize that what harm he is causing to the tree. The tree is supposed to be on the top of the hill, but right now the tree is here in this small pot in a limited space. So the gardener cannot actually realize that what harm he is causing to the tree or to the bonsai tree. So the gardener croons. Croons means happy state of mind. It indicates the happy state of mind of the gardener. It is your nature to be small and cozy, domestic and weak. So see, like it shows that the gardener is actually conversing with the tree. वो काट रहा है, काटते काटते उसे बोल रहा है कि सुनो, तुम्हें तो इतना छोटा रहना है, तुम्हें तो कोजी रहना. मान लो कि उसे पाल रहा है वो गार्डनर. राइट, द टर्म योर इंडिकेट्स दैट द गार्डनर इज टॉकिंग. The gardener is talking. Okay, so it is your nature. That means तुम्हें तो शांत रहना है, तुम्हें तो चुप रहना है, तुम्हें तो छोटा होना है. To be small and cozy. Cozy means helpless. So you should be helpless. You must be helpless. Domestic and weak. Small, cozy, domestic, weak. ये सब कीवर्ड है. Okay. How lucky a little tree to have a pot to grow in. अब देखो उनको कंसोल कर रहा है, जो गार्डनर है उसे ट्री को कंसोल कर रहा है. यू जस्ट थिंक बॉन्साई ट्री, हाउ लकी यू आर दैट यू आर नॉट ऑन द टॉप ऑफ द हिल, you are not facing storms and scary nights. Rather, you are pretty small right now and you have been put in a small pot, so you are out of danger right now. You are right now safe. And why? Because you are going to be kept in a small house, in a room for decoration. So how lucky little tree to have a pot to grow in. See, तुम कितना लकी हो कि तुम्हें वहां पे नहीं रहना पड़ रहा है, तुम्हें एक छोटा सा पॉट दिया गया है, तुम वहां पे रह रहे हो.
यानी कि इसको अगर वुमेन के लाइफ के साथ कनेक्ट कर तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि सिमिलरली एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वुमेन वर डोमिनेटेड बाय मेल्स इन द फैमिली, सो द मेल्स सपोज टू बिहेव लाइक, तुम्हें चुप रहना है, आवाज मत करो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम्हें बाहर मत जाना, नहीं जाना है तुम्हें बाहर, तुम जॉब मत करो, तुम जो तुम्हारा मन चाहे, तुम्हारा मन चाह रहा है तुम अभी दोस्तों के साथ घूमने जाओगे, मत करो, देखो वहां पे खतरा है, ये वहां पे ये है, देखो तुम कितना लकी हो बेटा कि तुम घर पे हो, देखो तुम सेफ हो बेटा घर पे, तुम घर पे ही रहो, ऐसे बात नहीं किया जाता, उन्होंने तुम्हें दो बुरा बात कहा ना, बोलने दो, तुम कुछ मत कहो। सो इस तरह से जो है मेल सोसाइटी जो है डोमिनेट करता था किसे, वुमेन्स फीमेल सोसाइटी को। ओके, सो सिमिलरली हियर द गार्डनर इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द entire male society, okay, and bonsai tree is the representative of all the women. With living creatures, one must begin very early to dwarf the growth, the bound faith. So actually in this particular lines, okay, the speaker zooms out the gardener's point of view and resumes their own narration. So according to the speaker, one must early start to dwarf their growth, यानी कि तुम्हें जो है अपना ग्रोथ जो है उसे रोकना होगा। द बाउंड फीट, तुम्हें अपना पैर जो है उससे आगे नहीं बढ़ना देना चाहिए। एक्चुअली ये एक चाइनीज ब्यूटी प्रैक्टिस को भी रेफर किया जा रहा है। इन द प्री 20th सेंचुरी चाइनीज ब्यूटी प्रैक्टिस ऑफ बाइंडिंग द फीट ऑफ वुमेन फ्रॉम चाइल्डहुड, ओके, सो दैट देयर फीट रिमेन टाइनी एंड डेलिकेट लुकिंग। सो चाइनीज कल्चर में ये लोटस फीट नाम का एक कल्चर था, ब्यूटी कल्चर था या फिर ब्यूटी प्रैक्टिस था, जिसमें क्या किया जाता था, वुमेन का पैर जो है, उंगली को एकदम ऐसे टेढ़ा करके ना उसे बांध दिया जाता था ताकि उन लोगों का पैर जो है वो ग्रो ना कर सके। ये एक ब्यूटी प्रैक्टिस है, प्री 20th सेंचुरी में चाइनीज कल्चर है एक, ठीक है। तो उस चाइनीज कल्चर को यहाँ पे रेफर किया गया है इस पोएम में वुमेन के साथ कि with living creatures one must begin very early to dwarf their growth. That means the speaker zooms out the gardener's point of view in this particular lines. The bound feet, that means you should not go out, you should not do anything according to your ways or according to your choice, okay. The crippled brain, they must be brainwashed, yani your brain must be crippled. लास्ट ईयर क्लास 9 में पुराना जो सिलेबस है उसमें एक पोएम, आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, सो अगर पॉसिबल होगा वो जाके वो पोएम वहां पे एक बार पढ़ लेना। So the crippled brain, that means your brain must be crippled, you should not think or you should not think of your own, okay, your brain must be kept, your brain crippled, your brain must be washed. The hair in curlers, actually the speaker notes the curling of the hair that refers to the beautification. Okay, the hands you love to touch, actually these examples of dwarfing living things involve artificial beauty standards imposed on the women. और लास्ट जो दो लाइन है, the hands you love to touch, actually यहाँ पे the narrator's voice shifts from the third person to second person and the narrator carefully the speaker directly addressing the gardener of the reader कि you want कि तुम चाहते हो कि वुमेन को ऐसे रहना चाहिए, तुम चाहते हो कि तुम्हारा बात सुने वुमेन, और तुम ये भी चाहते हो कि वो जो लड़कियां है या फिर वो जो वुमेन है वो तुम्हें रेस्पेक्ट भी करे, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो ये रहा टोटल एक्सप्लेनेशन। अब टोटल एक्सप्लेनेशन को अगर एक समराइज कर दिया जाए तो क्या होगा, बॉन्साई ट्री जो है, बॉन्साई ट्री सपोज टू ग्रो ऑन द टॉप ऑफ द हिल एंड इट कुड हैव बीन ग्रो 80 feet tall, but right now the bonsai tree is in a small pot and the small pot refers to the
domestic fear or limited space giving to the women. What happens? Every day a gardener comes and the gardener cuts the branches of the bonsai tree, and when he cuts the branches of the bonsai tree, he sings, he croons. It shows the happy state of mind of the gardener, and as if the gardener is conversing, as if the gardener is talking to the bonsai tree कि you should not do this, you should not do that. यानी कि मेल सोसाइटी जो है इसी तरह वुमेन का ब्रेन वॉश करता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, तुम वहां जॉब करना चाहते हो, हाँ वहां पे मत जाओ, ये मत करो, उससे बात मत करो, ये मत करो, ये ना करो. इस तरह से द ब्रेन जो है उसे वॉश किया जाता है. ओके, इट इज योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कोजी, डोमेस्टिक एंड वेक. ऑल दीज आर कीवर्ड्स. सो द गार्डनर इज समहाउ कन्वर्सिंग विद द बॉन्साई ट्री एंड ही इज कंसोलिंग द बॉन्साई ट्री दैट यू सपोज टू बी वीक, यू सपोज टू बी सबमिसिव, you supposed to be meek, and even he is consoling, the gardener is consoling the bonsai tree also, that you are very lucky. Why? Because you have got a small pot to grow. और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ही मतलब एक चाइल्डहुड से है जो एक लड़की का ग्रोथ जो है उसे डॉर्फ कर देना चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए. वाई? सो दैट दे कैन नॉट रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड अगेंस्ट द मेल सोसाइटी. इवन द ब्रेन ऑफ वुमेन मस्ट बी वास्ट, द ब्रेन ऑफ वुमेन, द थॉट्स ऑफ वुमेन मस्ट बी वास्ट. ओके, देयर ब्रेन्स मस्ट बी crippled and the hair in curlers. That means like they are used, the women are used as the decorative things of our house. And the last two lines, the hands you love to touch. यहाँ पे रीडर को डायरेक्ट या फिर गार्डनर को डायरेक्ट यहाँ पे या फिर मेल सोसाइटी को डायरेक्ट पॉइंट आउट किया गया है कि तुम इतना टायरेनिकल बिहेव करोगे तुम वुमेन के साथ, उसके बाद भी तुम चाहोगे कि those hands should love us. That means they should respect us, they should love us. कि उनके मन से, उनके दिल से हमारे प्रति, मेरे लिए जो ऑनर है, जो रिस्पेक्ट है, वो नहीं जाना चाहिए. सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. कुछ पॉइंट यहाँ पे जरूर मार्क कर लो, लिख लो. लाइक वुमेन सपोज टू बी सबमिसिव, पैसिव एंड मीक. वुमेन सेमीकोलन सबमिसिव, पैसिव एंड मीक, यानी कि मेल सोसाइटी जो है ये चाहता है वुमेन को ऐसे रहना चाहिए, कैसे? सबमिसिव, पैसिव एंड वीक, एंड मेन डेफिनेटली सुपीरियर. इसी तरह इस पोएम में जो है मेन को और फीमेल को या फिर वुमेन को दर्शाया गया है. अगर हम बात करें थीम का कि इस पोएम का क्या क्या थीम है, सो इट कैन बी सोशल लिमिटेशन ऑफ वुमेन. फर्स्ट पॉइंट, सोशल लिमिटेशन ऑफ वुमेन. सेकेंड, ऑपरेशन ऑफ वुमेन, how the women are tortured, how the women are oppressed. Okay, next, women are compelled to follow predetermined social norms, traditions and customs. I repeat, women are compelled to follow predetermined social norms, traditions and customs. These three are the theme of this particular पोएम. और यहाँ पे बॉन्साई ट्री जो है, बॉन्साई मीन्स एक्चुअली लॉस ऑफ ग्रोथ एंड फ्रीडम, कि बॉन्साई ट्री के थ्रू, बॉन्साई ट्री को एक्चुअली होना चाहिए था पहाड़ में वहां पे, बट द बॉन्साई ट्री हैज लॉस्ट इट्स फ्रीडम, इट्स ग्रोथ. सिमिलरली द वुमेन have also lost their growth, women have also lost their freedom because of the males of the society. But once again मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को ये देखना होगा कि ये पोएम कब लिखा गया है. Right now women are given freedom, chance and everything. They are going out, they are doing their business, they are doing jobs, they are maintaining family, they are running family, everything they are doing, right? So you need to keep it in your mind when the era of the poem, when the poem was written. So this is the complete explanation. I hope समझ में आया. थोड़ा सा ट्रिकी पोएम है लेकिन बहुत ही अच्छा पोएम है, और इस पोएम के पीछे, नॉर्मल और इजी वर्ड्स के पीछे बहुत ही एक डीप थॉट जो है वो छुपा हुआ है. आई होप द पोएम, द कंसेप्ट इज कंप्लीटली क्लियर. उसके बावजूद भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को, कुछ भी आप लोगों को जानना है या फिर पूछना है, कमेंट बॉक्स पे आप लोग लिखो. आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल.
ओके, आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा, और एक पॉइंट जो है, क्वेश्चन आंसर्स भी मैं अपलोड कर रहा हूं। अब देखो, ये पॉसिबल नहीं है कि सारा वर्कबुक है, जितना वर्कबुक है सब वर्कबुक से मैं क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दूं, या फिर सब क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है कि नहीं? लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा, और करने वाला भी हूं हर एक चैप्टर से। और प्लानिंग में ये भी है कि कुछ ग्रामर का वीडियोस भी मैं अपलोड करूं, बट लैक ऑफ टाइम, बस यहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है कि कर नहीं पा रहा हूं। बट डेफिनेटली आई विल डू, यस आई विल डू। सो आज के लिए बस इतना ही। वंस अगेन, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं ये देख रहा हूं कि सब्सक्राइबर से ज्यादा नॉन सब्सक्राइबर है, कि you guys are watching the videos but you are not subscribing. Yeah, I know it's your personal choice, but still, मतलब we should accept the good things, right? So please subscribe the channel and hit the bell icon so that you never miss a single update. आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।